السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ٹی ایس پی ایس سی پرچے افشاء کے معاملے میں قاطیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ امتحان جلد منعقد کیے جائیں گے، تیاری کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ امتحان منسوخ کر کے کے ٹی آر بغلے بجا رہے ہیں۔ سی بی آئی یا عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایلا ریڈی میں احتجاجی بھوک ہڑتال۔ ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ دسویں جماعت کے امتحانات کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں۔ 24 مارچ سے ہال ٹکٹس کی اجرائی۔ امتحانی مراکز پر بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سویتا اندر ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع بشمول حیدرآباد میں گرج و چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ موسم سرد، عوام کو بارش کے دوران محتاط رہنے کا مشورہ۔ اور بہادرپورہ کے علاقے میں پلاسٹک گودام میں لگی بھیانک آگ۔ عقبی حصے میں واقع اقامتی اسکول میں قائم انٹر کے امتحانی مرکز کے طلباء کو تاریکی میں لکھنا پڑا امتحان۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ٹی ایس پی ایس سی پیپر افشاء معاملے میں جو بھی قاطی ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ایس پی ایس سی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 افراد کی غلطی پر پورے انتظامیہ کو غلط قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ پروین راج شیکھر ہی نہیں، اس معاملے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ جن 4 امتحانات کو منسوخ کیا گیا ہے اس کے لیے امیدواروں کو فیس داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا جلد ہو سکے اتنی جلد ہی امتحان منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منسوخ شدہ امتحان کی تیاری کے لیے اسٹڈی میٹیریل آن لائن ڈاؤن لوڈ کیے جائیں گے۔ اسٹڈی سرکل کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ ریڈنگ روم 24 گھنٹے کام کرے گا اور وہاں پر طعام کا اہتمام ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بے روزگار کی باتوں کو نوجوان نظر انداز کریں۔ ڈی جی پی کو اس معاملے کی پوری تحقیقات کرنے کا بی آر ایس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا ہے کہ راج شیکھر بی جے پی کا کارکن ہے اور بی جے پی کے حق میں کام کرنے والا فرد ہے۔ انتخابات قریب ہیں، کون کیسا ہے عوام خود ہی جان جائے گی۔ بی جے پی کی طرف سے اس معاملے میں کیے جا رہے پروپیگنڈے کو کے ٹی آر نے مسترد کر دیا۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی کی اقتدار والی ریاستوں میں کئی پرچوں کا افشاء ہوا، کیا وہاں کے وزراء نے استعفیٰ دیا؟ بی جے پی کے ریاستی قائدین کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن پیپر افشاء معاملے کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزراء کے ٹی آر، ہریش راؤ، چیف سیکرٹری شانتی کماری، ٹی ایس پی ایس سی کے صدر نشین جناردن ریڈی اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
पेपर इफ्शा से पैदा हालात के सिलसिले में इजलास में तबादला ख्याल हुआ है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, जो इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం మొన్న జరిగిన దురదృష్టకరమైన ఘటన ఏదైతే ఉన్నదో ఈ పేపర్ లీకేజీకి సంబంధించి సుదీర్ఘంగా సమీక్షించి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదించడం జరిగింది. తదనంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని తీసుకున్న నిర్ణయాలను కూడా ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నివేదించమని ఈ సందేశం ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశంగా వారికి తెలియజెప్పమని చెప్పి కూడా మాకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అట్లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు దీని వెనకాల ఉన్నాడు అంటే మేము ఇంకోటి కూడా అనుమానించాల్సి వస్తుంది. మేము ఇట్లా వరుసగా నోటిఫికేషన్లు ఇస్తూ పోతుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయన స్వయంగా అన్నాడు, ఎవరో కాదు, నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం కుట్ర, నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి యువతను బిజీగా పెట్టి మా దగ్గరికి రాకుండా చేసే కుట్ర అన్నాడు. అదేవిధంగా ఈ పేపర్ లీక్ వెనక ఎవరు ఉన్నా, వారు బీజేపీ వాళ్ళైనా, కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళైనా, నేను తెలంగాణ యువతకి ముఖ్యంగా మా తమ్ముళ్ళకి చెల్లెలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరు ఉన్నా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. 1000కి 1000%, 100కు 100% వాళ్ళను తప్పకుండా చట్టపరంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. మీరెవరు కూడా ఈ విషయంలో ఆందోళన పడవద్దని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు బహిరంగంగానే ఈరోజు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్న మా రాజకీయ వైరుపక్షాల మిత్రులకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, పిల్లల జీవితాలతో దయచేసి ఆడుకోకండి. రాజకీయాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు, విజయాలు అపజయాలు సర్వసాధారణం. కానీ మీ ప్రయోజనాల కోసం, ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయడం కోసం పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడడం, పిల్లల్లో భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి, లేనిపోని అనుమానాలు రెచ్చగొట్టి, లేని కుట్రలను ఈరోజు జరగని ఏదో జరిగిందని మీరైతే భ్రమింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో ఇది మంచిది కాదు అని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीएसपीएससी इम्तिहान मनसूख करके केटीआर बगले बजा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इतवार के दिन येल्ला रेड्डी गांधीगिरी मंडल में बेरोजगारों का एहतजाज किया जाएगा। सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी। इन्होंने कहा है कि केटीआर ने खुद एतराफ़ किया है कि 155 एलामिया के जरिए 37,000 मुलाजिमतें फराहम की गईं, तो माजी में 1 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का केटीआर का बयान क्या झूठा है। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना तश्कील के बाद अब तक होने वाले तकर्रुरात की तहकीकात होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर केटीआर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो वजीर आला के जायज़ इजलास में क्यों मौजूद थे। केटीआर वजीर आला शैडो वजीर आला की तरह काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पेपर इफ्शा के मामले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, अभी उनकी तहकीकात चल रही हैं। सिर्फ 2 अफराद मुलविस होने का केटीआर किस तरह ऐलान कर सकते हैं। ओहदेदारों पर दबाव डालने के लिए केटीआर ने ये बयान दिया है। इस पूरे मामले को कमज़ोर करने के लिए केटीआर कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सीबीआई के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराएं। इन्होंने बेरोजगारों से अपील की है कि किए जाने वाले इस एहतजाज में वो शिरकत करें। बीजेपी के वफ्द ने हफ्ते को रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि टीएसपीएससी पेपर इफ्शा पर वज़ीर आला अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस मामले से मुतासिर होने वाले बेरोजगारों को फीकस 1 लाख रुपया दें, मनसूख शुदा इम्तिहान फौरन मुनक्किद किए जाएं। ई राजेंद्र ने कहा है कि आमिराना हुकूमत को बेदखल करने के लिए नौजवान बीजेपी के साथ मिलकर काम करें। इन्होंने कहा है कि केसीआर दौरे हुकूमत में मुसाबिकती इम्तिहान पर से तुलबा को भरोसा उठ गया है, इम्तिहान बराबर मुनक्किद नहीं कर सके, इसी नाअहल हुकूमत केसीआर की है। बीआरएस के रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ मुबैना मार्क्स को लेकर बीजेपी के रियासती सदर बी संजय रियासती खवातीन कमीशन के रूबरू पेश हुए। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में बी संजय के खिलाफ बास पुलिस स्टेशन में मुकदमे भी दर्ज किए गए। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर्स और खातून कारकुनों ने कहा कि हुकूमत की
नाकामी को छुपाने के लिए केसीआर की पार्टी और उनके कायदीन इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और एक झूठे मामले को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बी संजय ने कहा है कि उनकी पार्टी खवातीन का एहतराम करती है और खवातीन के खिलाफ कभी भी नाशाइस्ता रवैया नहीं रखी। बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता निमाक पर बी संजय को रियासती खवातीन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी की गई थी। इस सिलसिले में संजय कमीशन के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर संजय ने कहा कि इन्होंने कमीशन की सदरनशीन को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है। दूसरी जानिब बीआरएस की खातून कारकुनों की तरफ से बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन बी संजय से मुतालबा कर रही थीं कि कविता से मुआफ़ी मांगे। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि कविता के खिलाफ रिमार्क खवातीन की तौहीन है। खवातीन हुकूक कमीशन के रूबरू कार्ड थामे नारेबाजी कर रही थीं। रियासती वजीर सविता इंदर रेड्डी ने कहा है कि आइंदा माह 3 अप्रैल से शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। ओहदेदारों के साथ जायजे इजलास में सविता इंदर रेड्डी ने कहा है कि तलबा के हॉल टिकट्स 24 मार्च से ऑनलाइन अपलोड करें और स्कूल्स को भी रवाना करें। रियासत भर में 4,94,616 तलबा इम्तिहान लिखेंगे। इसके लिए 2,652 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा है कि बहुत जल्द डीईओ और जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। 3 अप्रैल ता 13 अप्रैल चलने वाले इम्तिहानात सुबह 9:30 ता 12:30 तक होंगे। इम्तिहान के दौरान तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। इस मौके पर महकूम तालीम के ओहदेदार भी मौजूद थे। हाल ही में शहर में बीजेपी के लीडर बीएस संतोष के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब शराब पॉलिसी स्कैम को लेकर बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता के पोस्टर भी लगाए गए हैं। इससे पहले वजीर आजम मोदी के पोस्टर्स भी लगाए गए थे। बाद में बीजेपी के कारकुनों ने इन पोस्टर्स को हटा दिया था। रियासत में पोस्टर जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रियासत तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में जुमा की रात 11 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो दरमियानी शब तक जारी रहा। हफ्ते की सुबह बारिश थम गई थी, लेकिन शाम 5 बजे से बारिश का दोबारा आगाज हुआ। कुकटपल्ली, पट्टनचेरू, रामचंद्रपुरम, जोबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, माधोपुर में गरज व चमक के साथ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की रात से इतवार को शदीद बारिश की पेशकयासी की है। अवाम को बारिश के दौरान घरों से ना निकलने का मशवरा भी दिया गया। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है और मौसम सर्द हुआ है। मोमरीन को और बच्चों को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के अजला विकाराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। टीएसपीएससी पेपर इफ्शा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजमीन को हफ्ते के दिन खुसूसी टीम उन्हें तहवील में ली है। अदालत की तरफ से 23 जनवरी तक 9 मुलजमीन को तहवील में दिया गया था। चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर आज सिट ने मुलजमीन को तहवील में लिया। पेपर इफ्शा मामले में मुलजमीन से मजीद पूछताछ जारी है।
पुरानी हवेली में खानदानी तनाज़ात की एकसोई के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट का हफ्ते को इफ्तिताह अमल में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस पी वी संजय कुमार ने इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। खानदानी तनाज़ात बिलखुसूस शौहर बीवी के झगड़ों के सिलसिले में इन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है ताकि तनाज़ात का शिकार जोड़ों की काउंसलिंग की जा सके ताकि वो अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। काउंसलिंग के दौरान अगर वो बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए खेल कूद के लिए भी जगह मुख्तस कर दी गई है। ख़वातीन के लिए वेटिंग रूम, फीडिंग रूम की सहूलतें भी इस कोर्ट्स में दस्तयाब रखी गई हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने शादी मुबारक स्कीम के 90 चेक्स तकसीम किए। चेक्स हासिल करने वालों का ताल्लुक तालाब कट्टा, अमान नगर, भवानी नगर, नागाबौली, इमामबाड़ा के अलावा दूसरे महल्ले जात से बताया गया है। इस मौके पर हल्के असम्बली याकूतपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। चेक्स हासिल करने वालों ने सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मज़कूरा फंड से 20 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी जुमला मालियत 13,80,000 रुपये बताई गई। चेक्स हासिल करने वालों ने सैयद अहमद पाशा कादरी से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिसी कारकुन विरासत के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज अहमद खान ने हिम्मतपुरा और फतेह दरवाज़ा इलाके के बास मकानों के मालिकिन में चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि मुतासरा मकान के बास मालिकिन को मुआवजे की अदायगी के बगैर पहले ही उनके मकानात को मुनहदिम कर दिया गया था। मुआवजे की अदायगी के लिए इन्होंने और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने कोशिश करते हुए बल्दिया से ये चेक्स जारी करवाए, जिसकी तकसीम हफ्ते के दिन अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने माह रमजान मुबारक को पेश नजर रखते हुए सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। इस मौके पर मुक़द्दस महीने में बिजली बिलाकलल सरबराह करने के अलावा साफ सफाई के उमूर पर बात की गई। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स सरफराज सिद्दीकी, आरिफ रिजवान, जफर खान के अलावा साबिक नुमाइंदे कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद वसीम और GHMC के को ऑप्शन मेंबर ने शिरकत की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने दारुसलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के ज़ायद 49 लाख मालियत के चेक्स तकसीम किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मज़कूरा स्कीम से करीब 50 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा करते हुए इसे रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स सरफराज सिद्दीकी और आरिफ रिजवान, जफर खान के अलावा दूसरे मौजूद थे। दूसरी जानिब सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने आग से मुतासरा प्लास्टिक के गोदाम का मुआयना किया है। इन्होंने पुलिस के अहदेदारों से भी मुलाकात की और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। मुकामी अवाम का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के गोदामों को मुंतकिल किया जाना चाहिए। बल्दिया की तरफ से इलाके में मौजूद नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में अभी भी मौसर पेशरफ्त नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के दूसरे अहदेदारों ने भी मुकामी वाक़या का मुआयना किया। रुकन कौंसल ने इस तरह के वाक़यात की रोकथाम पर जोर दिया। रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस के मुकामी लीडर्स की बरवक्त कोशिशों से आग पर जल्द काबू पा लिया गया।
माह रमज़ान की आमद से पहले शहर के मुख्तलिफ हल्के जात में मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल कराने के लिए मजलिस कायदीन मुतहर्रिक हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुंतखब रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने फलकनुमा डिवीज़न के फातिमा नगर के मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों और पार्टी कारकुनों के साथ दौरा किया। रुकन कौंसल ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इस इलाके में पानी की लाइन डाली गई थी और इसी सिलसिले में अहदेदारों के साथ दौरा किया गया है। वाटर लाइन का काम भी मुकम्मल हो चुका है। रहमत बेग ने कहा है कि यहाँ इलाके में सीवरेज लाइन की भी शिकायत थी, इस सिलसिले में भी अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। सीसी रोड बॉक्स, ड्रेन और दूसरे कामों के बारे में भी अहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से वाकिफ करवाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवाम को सहूलतें पहुंचाने के लिए मुसलसिल इक़दाम जारी हैं। आजमपुरा के उस्मानपुरा इलाके में टार्जन ग्राउंड और हैदराबाद स्कूल के पास 100 केवी के ट्रांसफार्मर को बदला गया और 160 केवी का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर यह ट्रांसफार्मर बदला गया है। नुमाइंदे कॉर्पोरेटर SM अबरार ने ट्रांसफार्मर की तनसीब के काम का जायजा लिया। संगारेड्डी पुलिस ने एक खातून के कत्ल के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। DSP संगारेड्डी टाउन पुलिस रविंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 28 साला मंगली कृष्णा को गिरफ्तार किया, जो गुज़िश्ता एक माह से रामनगर कॉलोनी के एक मकान में कविता के साथ नाजायज तौर से रहा करता था। कविता काम से रात देर गए घर पहुंची, जिस पर इन दोनों में बहस व तकरार हुई, जिस पर इसने तैश में आकर कविता के सर पर वार करके इसे हलाक कर दिया और लाश के हाथ पांव बांधकर एक थैले में रखते हुए महबूब सागर के बड़े तालाब में इसे फेंक दिया। बहादुरपुरा में जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया, इसके अक़बी हिस्से में टिमरीज का इक़ामती स्कूल था और वहां मुकीम तालिबात को फौरी करीबी शादी खाने में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इसी स्कूल में इंटरमीडिएट का इम्तिहान मरकज भी था। इब्तिदा में स्कूल इंतजामिया पसोपेश में था कि क्या इम्तिहान रखा जाए या नहीं, लेकिन सरपरस्तों का कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान होना चाहिए, वरना तुलबा को नुकसान होगा। आग लगने की वजह से इलाके में बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई थी और तुलबा को इसी हालत में इम्तिहान लिखना पड़ा। सुबह 5 से 5:30 बजे के दरमियान आग लगने का वाक़या पेश आया था, लेकिन स्कूल इंतजामिया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से जनरेटर का इंतजाम नहीं किया गया। तुलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। बहादुरपुरा काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के अंसारी रोड के पास हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तकरीबन 10 फायर इंजन्स ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप होने की वजह से आग जल्द फैल गई। बुलंद शोलों और धुएं की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। गोदाम में रखी हुई DCM गाड़ियां भी आग की नजर हो गई। गोदाम में इस वाक़े के वक्त कोई भी मौजूद न था, इसलिए किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बरक़ी तार के गिरने और शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है।
काचीगुड़ा पुलिस ने 17 लाख रुपए के नकद हवाले की रकम को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक काचीगुड़ा पुलिस की जानिब से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की सड़क पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। उसने हरि नारायण कोठारी के कब्जे से 17 लाख रुपए नकद रकम उस वक्त जब्त कर ली जब वो रकम सोहेल नामी एक मुस्तहक को हवाले कर रहा था। काचीगुड़ा पुलिस ने रकम जब्त करके इसकी खबर महकमा इनकम टैक्स को कर दी। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 93 के पास बरक़ी तार की जद में आकर 14 साल लड़की गिर पड़ी। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के मुकामी कारकुन मुजम्मिल को मुकामी वाक़या रवाना किया और फिर पुलिस को भी इत्तला कर दी। मुतासरा लड़की को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत नाजुक बताई गई है। मुकामी अवाम ने बताया कि बलदिया की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। फौरी मुतल्लिक़ा हुक्काम को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स का स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। इंतजामिया ने बताया कि इंडोर गेम्स, चेस, कैरम बोर्ड जैसे मुकाबले कॉलेज के अहाते में मुनक्किद हुए, जबकि आउटडोर गेम्स में जिसमें क्रिकेट और रेस, टग ऑफ वॉर और खो खो वगैरह कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद किए गए। रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। लड़कियों की बड़ी तादाद ने मुकाबलों में हिस्सा लिया और उनकी रहनुमाई के लिए भी तालिबात की कसीर तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। रॉयल डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा ताहिरा फरहा ने खिताब किया। इस मौके पर इंतजामिया के मेंबर्स भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। TSPSC पेपर इफ्शा के मामले में कातियों को बख्शा नहीं जाएगा। इम्तिहान जल्द मुनक्किद किए जाएंगे। तैयारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इम्तिहान मनसूख करके KTR बगले बजा रहे हैं। CBI या अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इल्ला रेड्डी में एहतिजाजी भूख हड़ताल। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दसवीं जमात के इम्तिहानात के लिए सख्त इंतजामात किए जाएं। 24 मार्च से हॉल टिकट्स की इजराई। इम्तिहानी मराकज पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। सविता इंदर रेड्डी का जायजा इजलास। तेलंगाना के कई अजला बशमूल हैदराबाद में गरज व चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी। मौसम सर्द, अवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा। और
और बहादुरपुरा के इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भयानक आग। अकबी हिस्से में वाक़े कामती स्कूल में कायम इंटर के इम्तिहानी मरकज के तलबा को तारीकी में लिखना पड़ा इम्तिहान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।